morning, students. How are you? I hope you will be good at your home. So, without wasting time, let us start a new chapter, that is Introduction to Computer. Okay. In this chapter, we will discuss what are the features of computer. Okay. The main thing is what is computer. So we start. Computer is an electronic device. You know, computer is an which type of device? Electronic device, which process data. Which process what? Which process data according to the set of instruction given by us. Okay, computer is electronic device which process data given by according to the instruction given by us. Okay, actually, the computer is derived from the Latin word. Which type of words? Latin words, which means computeri. Which means computeri. Computeri means to calculate something. Okay, so in this definition we will learn what are the Latin words. Computeri means, the computeri means to calculate something. Okay, again the new topic is computer versus human beings. What are the features that computer differs from human beings? So now let us discuss point to point. Number one, computer works very fast. You know, computer works very fast, but human beings works very slower. Computer works very fast and human beings work slower as compared to computer. Next point, computer never makes any mistakes, but human beings makes lot of mistakes. Computer stores large amount of information and human beings cannot store large amount of information. Next point is computers never gets tired, but human beings always gets tired. Okay, computer cannot take its decision on, but human beings can take the decision on. Okay, next point is computer has no any feelings, no any emotion. Computer has no any feeling, no any emotion, but human beings has a feelings, emotions. Okay, computer needs no any food, no water, but human beings gives human beings acquire food and water to survive their life, but computer has no any these types of activity. Okay, so these features says how computers better as compared to human beings. Okay, the next topic is early calculating devices. There are various types of calculating devices in earlier days like abacus. These are the figure of abacus. Various types of rods. The next feature is Napier bonds. This is the figure of Napier bonds. Again, the new feature is Pascaline calculator. This is the Pascaline calculator. Next topic is difference engine. This is the difference engine. This is analytical engine. So let us discuss what are these. The first is abacus. So what is abacus? Abacus आप लोगों को पता होगा, जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो उन लोगों को जो काउंटिंग सिखाया जाता है वो अबेकस की हेल्प से सिखाया जाता है। लेकिन एक टाइम था, आज से 5000 ईयर्स पहले जब लोग काउंटिंग करना नहीं सीखे थे, उस समय अबेकस से ही लोगों को काउंटिंग सिखाया जाता था। ओके, so abacus was one of the earliest counting devices. It is a device consisting of frame of rods. इसमें फ्रेम ऑफ रड्स रहते थे, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, विथ इजली स्लाइडिंग बेड्स ऑन देम। ठीक है, जिसमें स्लाइडिंग बेड्स बहुत इजली होता था। सिंपल कैलकुलेशन जो होते थे, एडिशन, सबट्रैक्शन, वो आसानी से इसमें हो जाया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम होते हैं नेपियर बॉन्ड्स। देखिए नेपियर बॉन्ड्स यहाँ पे नाम से पता चल रहा है। जैसे नेपियर बॉन्ड्स ऑल्सो कॉल्ड नेपियर रड्स, इसको नेपियर रड्स बोला जाता है। ठीक है, जो इन्वेंटेड किया गया था स्कॉटिश मैथमेटिशियन जिनका नाम था जॉन नेपियर। इन नेपियर बॉन्ड्स कंसिस्ट ऑफ 9 bonds with numbers marked on them. It has 9 bonds that marked on the figure. In this calculating device, the placement of sticks, इसमें sticks आप लोगों को दिख रहे होंगे। ठीक है, the placement of sticks is done in such a way that the products and quotients of large number can be obtained easily. Means
इसमें कैलकुलेटिंग किया जाता था विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स। ओके, नेक्स्ट फिगर इज पास्कलाइन कैलकुलेटर। ये आप लोगों को फिगर दिख रहा है, वो फिगर है पास्कलाइन कैलकुलेटर का। अराउंड 1642 Blaise Pascal developed a calculator called arithmetic or Pascaline calculator. It was one of the world's first mechanical adding machine. The word mechanical relates to the performing tasks manually. Okay, this device used a series of toothed wheels. आप लोगों को व्हील्स दिख रहा होगा, toothed wheels, ये गोल व्हील्स जो है, ठीक है। toothed wheel Pascaline could handle numbers up to 1999, which means 9 times 9, ठीक है। डिफरेंस इंजन, आप लोगों को डिफरेंस इंजन का फिगर यहाँ पे दिखाता हूँ। दिस इज द डिफरेंस इंजन। ओके, व्हाट आर डिफरेंस इंजन? एक्चुअली चार्ल्स बेबेज, आप लोग चार्ल्स बेबेज का नाम तो सुने होंगे। चार्ल्स बेबेज वाज द साइंटिस्ट दैट डिस्कवर्ड डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन्स का सबसे बड़ा फीचर्स क्या था कि ये सबसे जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होते हैं, आप लोग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अभी पढ़ोगे नहीं, आप लोग 10-11 में जाओगे तो एक कॉम्प्लेक्स मतलब इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वो उसको ये इजीली फाइंड कर दिया करता था। कौन? डिफरेंस इंजन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन का ये फिगर है, ठीक है। आफ्टर वर्किंग ऑन डिफरेंस इंजन इन द ईयर 1833 चार्ल्स बेबेज इसको भी इन्वेंट किए थे, ठीक है। तो इस मशीन का सबसे बड़ा फीचर क्या था? दिस मशीन could store 1000 numbers of 50 decimal digits each. Understood? मतलब this machine could store 1000 numbers of decimal digit each. The machine could perform all arithmetic operation. ये बहुत सारे arithmetic operation जैसे कि एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबको कर सकते थे। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द फर्स्ट वन इज this type, this the figure is first generation computer. In the first generation computer vacuum tubes are used. जैसे वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, ठीक है। अब आप लोग को बताते हैं वैक्यूम ट्यूब्स होता क्या है। तो वैक्यूम ट्यूब्स होता क्या था, एक ट्यूब्स के शेप का होता था, ठीक है। इसमें जो भी हम लोग अभी यूज क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, प्रोसेसर यूज होता है, लेकिन उस समय वैक्यूम ट्यूब होता था जिसका साइज़ एक रूम के जितना बड़ा हुआ करता था, ठीक है। और इसमें जो यूज मतलब कोई भी स्टोरेज होता था वो स्टोरेज हम लोग करते थे वैक्यूम ट्यूब में या मैग्नेटिक ड्रम में। ये क्या करता था, दे ऑक्यूपाई लॉट ऑफ स्पेस, दे वेर एक्सपेंसिव टू ऑपरेट। इसको ऑपरेट करना भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था। इसमें सबसे बड़ा डिमेरिट ये था, दे यूज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट। बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था। अगर मान लो आप लोग कंप्यूटर रूम में काम कर रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो आप लोग काम करना चाहोगे? नहीं चाहोगे। तो उसी तरह से ये कंप्यूटर होता था, इसलिए इसको बैन कर दिया गया। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, देखिए ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था। तो इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक कोर का यूज होता था मेमोरी को स्टोर करने के लिए। दे यूज ट्रांजिस्टर का साइज कैसा होता है, ये देखिए आप लोग ट्रांजिस्टर दिख रहा होगा, मतलब इस टाइप का ट्रांजिस्टर का यूज होता था, ठीक है। दे वेर स्मॉलर एंड फास्टर एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। दे वेर चीपर टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना बहुत चीप था कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। दिस इज द फिगर ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अब हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। तो द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर टोटली डिपेंड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट, मीन्स ये इंटीग्रेटेड सर्किट पे वर्क करता था। आप लोग सर्किट देखे ही होंगे कैसा होता है। तो इसमें जो भी वर्क होता था सब सर्किट पे होता था, इंटीग्रेटेड सर्किट पे, ठीक है। दे वेर फास्टर एंड एफिशिएंट, ये फास्टर भी होते थे एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन। फॉर द फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम था कंप्यूटर्स वे मेड अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। इसी टाइम से जनरल पब्लिक को कंप्यूटर मिलना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। देन द यूजर्स कम्युनिकेटेड विद द कंप्यूटर यूजिंग कीबोर्ड एंड मॉनिटर। इसी टाइम लोग जो थे कीबोर्ड से और मॉनिटर से क्या हो जागरूक हो पाए थे। नाउ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इज दिस टाइप ऑफ, आप लोग जो यूज करते हैं अभी के टाइम में वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है। ये वर्क करते थे माइक्रो प्रोसेसर पे, ठीक है। अब इसमें क्या था, ये बहुत स्मॉलर होते थे, एनर्जी एफिशिएंट करते थे, मोर रिलायबल थे,
ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर। इसमें इस टाइप में का जो 4th जनरेशन कंप्यूटर था, इसमें क्या क्या आ गया, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप हो गया, टैबलेट्स हो गए, ये सब हो गए 4th जनरेशन कंप्यूटर। ये टोटली वर्क करते थे माइक्रो प्रोसेसर पे। माइक्रो प्रोसेसर बहुत ज़्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू ऑल जनरेशन। नाउ द 5th जनरेशन कंप्यूटर, द 5th जनरेशन कंप्यूटर वर्क्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस वेयर कंप्यूटर थिंक्स एंड टेक्स डिसीजन लाइक ह्यूमन बींग्स। ओके, मतलब इस टाइप का जो अभी आने वाला जो जनरेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेस्ड रहेगा। इसमें सारा काम कंप्यूटर खुद से कर लेगा। डिसीजन लेना होगा तो वो भी ह्यूमन बींग्स के जैसे ले लेगा। मतलब सपोज लो आप रोबोट्स देखे होंगे, ठीक है, मतलब 5th जनरेशन में रोबोट्स वर्क करने वाला है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का बहुत सारा यूज होता है एजुकेशन फील्ड में, बिजनेस में, हॉस्पिटल्स, बैंकिंग में, होम में, मार्केटिंग में, स्टूडेंट्स लोग करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, हाई स्टोरेज, वर्साटिलिटी, फास्टर कम्युनिकेशन। तो अब सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। स्पीड क्या होता है, ठीक है, ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन ओके इन विद इन अ सेकेंड। मतलब स्पीड इसका इतना फास्ट है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स ये कैलकुलेशन को विद इन सेकेंड कर सकता है। एक्यूरेसी, अ कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स करेक्ट रिजल्ट। ये हमेशा करेक्ट रिजल्ट ही देता है। इफ़ द डाटा गिवन एज एन इनपुट ऑफ द कंप्यूटर इज करेक्ट इट प्रोड्यूसेस एक्यूरेट रिजल्ट। मतलब अगर आप इनपुट सही देते हो तो ये रिजल्ट भी सही देगा, आउटपुट भी सही देगा। ये होता है एक्यूरेसी। इंटेलिजेंस क्या होते हैं, अ कंप्यूटर डज नॉट गेट्स टायर्ड।